Greetings everyone. Let us start our preparation for Chandigarh JBT entrance exams. We are here to get you through the general science paper and let us begin with the MCQ practice. Question number 1. What does the term ozone hole mean? ओजोन होल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लार्ज होल इन ओजोन लेयर, option B small holes scattered, option C thinning of ozone layer in atmosphere, option D hindrance in the ozone production. तो होता क्या है ओजोन, कहाँ मिलेगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ओजोन इज O3, a triatomic molecule of oxygen मतलब 3 एटम्स ऑक्सीजन के मिलकर एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाएंगे. अब ये मिलेगा कहाँ? हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एयर ब्लैंकेट है that we call as atmosphere, and this have further sub layers. तो इस एटमॉस्फेयर की सब लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसमें हमें ओजोन मिलता है. Ozone is found in stratosphere. It's a thin layer. As a blanket, it is covering our whole earth. What is the importance of this ozone? Importance is it prevents UV rays. UV rays को ब्लॉक करता है, अर्थ तक आने नहीं देता है. तो होगा क्या बेटे इसका आंसर? करेक्ट आंसर इधर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. ओजोन होल एक छेद नहीं होता जब ओजोन की परत हल्की होने लग जाए ताकि यूवी रेज आराम से उसको पार कर सके. दैट मेक्स ओजोन होल. क्वेश्चन नंबर 2. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन विच यूनिट? द आंसर इज ओम. कैसे आया? हमारे पास ओम्स लॉ होता है. ओम्स लॉ बताता है that in a electrical circuit V is directly proportional to I. V is the potential difference, I is the electric current. When we remove the proportionality sign, it becomes V equal to IR, where R is the resistance. It is the constant of proportionality here and known as resistance. तो अब इसकी SI यूनिट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट ओनली. करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स and resistance is measured in ohms. The symbol for ohm is this one, ampere with capital A, volt with capital B. I hope you got it. Question number 3. A piece of wire of resistance R1 is cut into 4 equal parts. एक इलेक्ट्रिक वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए. And is connected in parallel. Find the ratio R1 and R2. R2 is the new resistance. So how will we get? जब हम पैरेलल में करते हैं रेजिस्टेंस, it comes like this. चार हिस्सों में कट कर लिया उसको और अब हमने उसको पैरेलल में अटैच किया है. पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट फॉलोज द रूल 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2
plus 1 by R3 and so on. अब देखें कैसे निकालेंगे इसकी रेशो। पहले R1 रेजिस्टेंस थी, अब उसको 1/4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि ये हमारी हो गई R/4, R/4, R/4 and this is also R/4. So when we take their reciprocal, it comes out to be 4 by R plus 4 by R plus 4 by R plus 4 by R. 4 times 4 by R. That is 16 by R. R is R1 here. So R equivalent, that is R2. It becomes R1 by 16. So ratio of R1 by R2, R1 by R1 by 16, that means 16. Answer is D, 16. Next question. Which mirror is used in vehicles as a rear view mirror? The answer is convex mirror. होता क्या है? Convex mirror covers a larger field view and you must have read it on the rear view of your vehicles. क्या लिखा होता है वहां? Object may appear nearer as it looks for. तो ये होता है बेटे हमारा कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट, metal plus acid produces a gas which burns with pop sound. Which gas? जहां भी आपको पॉप साउंड की गैस मिल जाए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस. अब यहां जो हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा अमोनिया का, तीसरा H2 एंड फोर्थ SO2 गैस. तो इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज विदाउट एनी स्मेल but it turns lime water milky. अमोनिया, अमोनियकल स्मेल आएगी, गंदी सी. थर्ड है H2, it burns with a pop sound. And SO2, sulfur dioxide gas, has sulfur burnt like smell. Come to the next question. Question number 6. Which vitamins are fat soluble? Which vitamins are fat soluble? लिसन बच्चे, हमारे पास मेन विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई. इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपने लर्न करने हैं. साथ में कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, तो देखते हैं बेटे. विटामिन ए, डी, ई, these are the fat soluble. And vitamin B, C, these are water soluble. So here you got the correct answer, option number. अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. Light enters from air to water. What happens? Light enters from air to water. साफ नजर आ रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है. और जब मीडियम चेंज होता है तो होती है रिफ्रैक्शन. देखते हैं ऑप्शन. Velocity increases, frequency decreases, wavelength and frequency increase, wavelength and velocity decrease. तो क्या होगा बच्चे? देखो, जब हमारे पास एयर मीडियम है और वो वाटर के अंदर जा रहा है, तो वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा. एंटर किया, नॉर्मल जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन जब डेंसिटी ज्यादा होती है इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल और इसकी स्पीड हो जाएगी कम. द वेलोसिटी विल डिक्रीज अलोंग विद द वेवलेंथ डिक्रीज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन है 500 मिलीलीटर ऑयल इन 2 लीटर जार एक्सर्ट्स प्रेशर. सिंपल प्रेशर का लगेगा भाई पास्कल्स लॉ. पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर exerted by any liquid distributes itself equally in all the direction. देखते हैं आंसर्स कौन कौन से हैं बच्चे.
First option only downward, third only upward, C in all directions, D only sideways. So the correct answer is C in all directions. It is following Pascal's law here. Okay, next question बच्चे. Which gas is produced during photosynthesis? Photosynthesis में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? The answer is oxygen gas. और अगर कोई पूछे क्या पौधा रेस्पिरेशन करता है? Or the question is carbon dioxide produced by the plants? The answer is again yes. Respiration में plants give out carbon dioxide as a waste product, and in photosynthesis oxygen is released as a product. So both are the products in the metabolic activities of the plants. Next question number 10. Copper vessel corrodes in rainy season. गिविंग क्या होता है? कॉपर वेसल की करोजन क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जो तांबे का लोटा होता है और अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं या कोई भी दूसरा कॉपर वेसल है, आफ्टर सम डेज ऑफ इट्स यूसेज उसके अंदर आप देखना किनारियों पर हल्का सा हरा रंग नजर आएगा. वही लेयर यहां पूछी गई है कैसी नजर आएगी? देखिए ध्यान से, कहीं ग्रीन कोटिंग नजर आती है? यस, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन कोटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स. होता क्या है बेटे, कॉपर में रिएक्शन होती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर एंड इट मेक्स basic copper carbonate CuCO3 dot CuOH whole twice. It is known as basic copper carbonate and it appears greenish. Okay, next question. Which part of the cell is known as powerhouse? हम लिटरली बात करें पावर हाउस. पावर हाउस होता क्या है? जो एनर्जी प्रोवाइड करे. एंड विद इन अ सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? Because mitochondria is the production site for ATP. ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. It is also given the term energy currency of the cell. चलो बच्चों, लगे हाथों, चैट सेक्शन में लिख दो the cell organelle which is known as the kitchen of the cell. जल्दी से. Kitchen of the cell. Yes, the correct answer is plastids. Plastids are also known as kitchen of the cell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन डी. इट इज रिकेट्स. बेटा एक टेबल बना लेनी है आपने जिसमें विटामिन, उनके साइंटिफिक नेम, डिजीजेस कॉज एंड सोर्सेज. यू हैव टू राइट इट डाउन एंड लर्न इट. पक्का एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बनती है रिकेट्स. Scurvy is the deficiency disease of vitamin C. Beriberi is for vitamin B. And night blindness is for vitamin A. Next question.
Question number 13. SI unit of force is? Direct question. SI unit of force होता है बच्चे न्यूटन. कैसे निकाला? बेटे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m is mass, a is acceleration due to gravity. If we talk about it in the terms of SI unit, mass is measured in kilograms and acceleration is measured in meter per second square and force is measured in Newton. Symbolic representation capital N. So you can say that 1 Newton is equal to 1 meter per second square. 1 Newton is equal to 1 meter per second square. Next question. Which planet is known as red planet? पृथ्वी का बेटा मार्स, मंगल, इसी को बोलते हैं हम रेड प्लैनेट. नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज? बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. पैलेंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. आप हिंदी ऑप्शन में देख भी पा रहे होंगे, जीवाश्म विज्ञान, जो जीवों का बचा हुआ हो उसकी साइंस क्या होगी? पैलेंटोलॉजी. जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स and anthropology is the study of human behavior and its developments. Next question. What is the chemical formula for washing soda? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का. वॉशिंग सोडा पहला कौन सा ऑप्शन दिया? Na2CO3 डॉट 10H2O. बेटा ये 10H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये अलग है? इसके बीच में डॉट क्यों लगी है? ध्यान से सीखेंगे अभी. सेकेंड ऑप्शन दिया NaHCO3, थर्ड ऑप्शन दिया CaCO3 एंड द डी ऑप्शन इज NaCl. देखते हैं चारों कैसे कैसे बने और इनका क्या नाम होगा. पहला ऑप्शन आता है हमारे पास Na2CO3 डॉट 10H2. ध्यान रखना बच्चे, ये जो 10H2O डॉट के बाद लिखा गया है, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. The number of water molecules added to the 1 unit of a salt is known as water of crystallization. It makes the molecule convert into a crystal form. और ये क्या था बेटे? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. जनरली हम लोग इसको बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट. 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं डेकाहाइड्रेट. And this is the formula for washing soda. तो आपको ये तो समझ आ ही गया कि हमारा करेक्ट आंसर यही है. सेकेंड ऑप्शन भी समझ लेते हैं क्या था. NaHCO3. NaHCO3. Sodium ion is bonded with hydrogen carbonate ion. It is known as sodium bicarbonate, or simply we can say sodium hydrogen carbonate, or the common name is baking soda. ध्यान रखना बेटे इसका, बेकिंग सोडा. और थर्ड ऑप्शन थी हमारी CaCO3. ये CaCO3 क्या है बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट. And also known as limestone. It is also found in marble. And the last one is NaCl, sodium chloride, with the common name common salt
और टेबल सॉल्ट, जो आप सादा व्हाइट नमक अपने घर में यूज करते हैं। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल? बेटा अभी हमने पूछा था एक दो क्वेश्चन पहले ही कि किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, हमने बोला था प्लास्टिड। सही बात है। खाना कैसे बनता है पौधे में? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? प्लास्टिड्स में। तो यहां देखो प्लास्टिड की टाइप दे रखी है क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। अब देखो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल फॉर्मिंग एटीपी द एनर्जी करेंसीज। थर्ड है राइबोसोम, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड लास्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल which have DNA, RNA in it. Next question number 18. Which blood group is called a universal donor? भाई इसका करेक्ट आंसर है O। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ पूछ लिया जाए, भाई O ब्लड ग्रुप भी हमारा दो तरह से मिलता है, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, तो कौन सा इनमें से यूनिवर्सल डोनर है? द करेक्ट आंसर इज O नेगेटिव, क्योंकि इसमें RH फैक्टर भी नहीं है, वो भी नेगेटिव है, एब्सेंट है। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज AB। Universal donor O, AB is the universal receiver. Next question bete. Gas used in the fire extinguisher is, fire extinguisher आग को बुझाने के लिए क्या यूज करोगे? Essential conditions of combustion याद करिए क्या क्या है। सबसे पहला क्या चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, कोई चीज जलने के लिए तैयार हो भाई पहले वो होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड चाहिए हमें सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो होती है एयर यानी कि ऑक्सीजन। एंड थर्ड चाहिए हमें इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटे? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कि कम से कम कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। इसका एक और नाम होता है, जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन में, हरिए बच्चे। इट इज किंडलिंग टेम्परेचर। याद रखना बच्चे, किंडलिंग और इग्निशन टेम्परेचर एक ही चीज के लिए दो नाम है। तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन था गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज, कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। भाई हम कोई सामान नहीं हटा सकते जो जलने लग रहा है, क्या कर सकते हैं? एयर की सप्लाई कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देंगे ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए एंड द फायर पुट्स ऑफ। So the correct answer is carbon dioxide. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। Which part of the human body stores bile juice? Bile juice कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? जल्दी से बताइए आंसर। बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के लिए हेल्प करता है। एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, पित्ताशय।
याद कर लो इसको. इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज. लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? इट इज सिट्रिक एसिड. अब टार्टारिक एसिड कहां मिलेगा आपको? टैमरिंड में. क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सेकंड पेज पे एक टेबल है बेटा, उसको भूलना नहीं है. पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है इस चैप्टर से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से. इस टेबल में आपको बता रखा है एप्पल में मैलिक एसिड है, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड है. कौन सा एसिड कहां प्रेजेंट होता है? यू हैव टू लर्न इट. लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन द कर्ड. एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर which is used as a chemical preservative. हिंदी में विनेगर को बोलते हैं बेटे सिरका. सिरके वाले प्याज हम रेस्टोरेंट में बड़े मजे से खाते हैं. It is 8 to 10% acetic acid in vinegar. Next, the purest form of natural water is. सबसे प्योर वाटर फॉर्म कौन सी मिलेगी? आंसर इज रेन वाटर. क्यों? सी वाटर में भी तो वाटर है, बट इट हैज मिनरल्स. Second, river water. Again, side by impurities can be mixed and the minerals presence. Well water, again, the underground minerals will be coming off. 23rd question. Which gas is used in balloons to make them float? गुब्बारों में तैरने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से आंसर बताइए बेटा. आंसर रहेगा हीलियम गैस. हीलियम. Question number 24. Which part of the plant is known as food factory? Answer is leaf. Leaf में ही photosynthesis होगी because it has the chlorophyll pigment in it. 25. The first man to step on the moon, and we all have learnt it. It is Neil Armstrong. That's all for this video. Stay tuned.